Hello and welcome to the NewsX, and today in a special telecast on Jammu and Kashmir Assembly election, we have reached in a Kotli colony. Yes, we'll try to show you the martyrs memorial over here, and this is Shahid Smarak of Kotli colony, 1947, the Black Day, which basically people knows in this area because they have lost their family members in that attack of Pakistani army and the Pakistani terrorists, those who brutally raped, murdered this Hindu community people, those who were residing there in the Pakistan-occupied Kotli area. And people of that area, they migrated to Jammu and Kashmir in this area, and then that Kotli colony is established. These people are very important because in this, assembly election, they'll be able to get one nominated candidate from the Pakistan-occupied Kashmir families, those who have migrated from that area. And you can see that we have with us number of people from Pakistan-occupied Kashmir. They are the refugees, those who have seen that brutal attacks, those who have suffered a lot. And today, in this special telecast, we will speak to them that how that massacre has taken place and how painful it was. Let's speak to the, people over here. बहुत मुश्किल होगा वो याद करना आपके लिए भी, मगर जो आपने सुना हो, जो आपने समझ पाए हो, कितने वो परिवार थे जिनको अपनी जानें गंवानी पड़ी, कितना वो मुश्किल समय था। और यहाँ जो कोटली कॉलोनी इसको कहा जाता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि यहाँ वही लोग बसते हैं? Though I'm a science student, but I haven't heard of any of the country which was divided and the other part invaded by the country. And this was the first one which was done. And in October 47, when we people were compelled to leave our village area, they called as Kotli, though the district was named as Mirpur, and army of people of the army of Jammu and Kashmir, in the uniformed as Kabilis, they attacked our part of the state. And we left, we were compelled to leave our beautiful area that named as Kotli, and people came here. They came here, they came to Amritsar, they went to Purana Killa, Delhi, and some of them to Himachal Pradesh. And what they have suffered, everyone knows, out of around, I think, 28,000 people, more than 21,000 were killed by those people. And only the people those came in India were around 7,000. After 10 years when this election is taking place, so how seriously people of Pakistan-occupied Kashmir are taking it? Because everyone knows that it's more than 5-6 decades that you people have migrated over here, and still now there is no one who says that you'll be taken back to POK, that area. No doubt that the government claims that will be our part in the coming times. We will get it back. But do you think something concrete has been done by the authorities over here? Since last 70 years, none of the political party, whosoever is in center, has done something. Only BJP, they have just given a peanut to the people of that is around of 5.5 lakhs of rupees to some of the people. But lot of work yet to be done. And I was just talking to one of my friends. He told that our forefathers suffered and bloodshed happened. But we have not suffered. We have suffered. Sir, we have suffered because they suffered. If they would have been in better position, we would have much better position than as on date. Because education level increased after partition. So we would have been judges and at very higher posts. As again, the second question you have told about that election is happening after 10 years. And some of the 4 or 5 candidates of POJK, they are contesting the election. If they go to the assembly, and I'm sure they'll go to the assembly, people will vote for them. And if they go to the assemblies, they will definitely raise our voice. And I do hope that situation will be much better for us than now. You said that only few thousand people, they basically came to this Kotli colony and started residing over here. Yeah. What is the situation right now in Jammu city and especially in this constituency where you are sitting? No, we are talking. That I have told about only Kotli village. I have not talked about Mirpur. I have not talked about people who came from Mimbar. We have not talked about people from the other part of the country. How you people are going to be important, and we can say that you will be able to dominate any seat. Sir, एक हिंदी में कहावत है, अगर क्या नाम है खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा.
if something happens, something good is to be done for. I don't say that do for. How much voters you are over here in as far as the POK people are? I think in this constituency there are around 1 lakh voters, out of which around 60,000 are from Kotli area, Kotli and all around Mirpur area. And what kind of candidate you are looking for? It will be a candidate-based election. Are you thinking of some political party? No political party, as well as if a political party does anything which suits us. So far as I told you, BJP, if they have asked Arvind Gupta to contest the election and he is from that very area, definitely we will go for party as well as candidate. We'll come back to you, after some time, but we'll speak to the other people as well that what they have to say. राजीव जी, आपसे बड़ी बार हमने बात की और हमेशा न्यूज़ एक्स ने कोशिश की कि पीओके के मुद्दे को जिंदा रखें, उठाए रखें और उसी का नतीजा हमने देखा, एक सीट आपको दी भी गई है। लगता है ये काफ़ी है? देखें, काफ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ न्यूज़ एक्स का कि ये मुहिम उनके द्वारा शुरू की गई थी, नतीजे निकले हैं। चलें, एक दी गई है, हम लड़ेंगे इसके लिए, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम आगे भी जो विधानसभा बनेगी, और वैसे तो ये विधानसभा में ही बिल पास होना है, केंद्र में इसलिए पास हुआ क्योंकि विधानसभा की पावर जिस समय केंद्र के पास थी, यहाँ पर असेंबली सस्पेंड थी। तो निश्चित तौर पर हम इस मुद्दे के लिए लड़ेंगे, क्योंकि बड़ी सारी कमेटियां और कमीशन ये रिकमेंड कर चुके हैं कि अगर इन लोगों का भला करना है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, तो इनको पॉलिटिकली एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावरमेंट कैसे आती है आजकल के इस दौर में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेट कंट्री हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो लोग नुमाइंदे होंगे उनके पास ताकत होगी अपनी उस समुदाय की बात करने की, तो उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, अभी आपने पूछा कि खाली ये कॉलोनी क्या करेगी, ये एक कॉलोनी नहीं है, ये कोटली कॉलोनी है, आगे मीरपुर कॉलोनी है, आगे बिम्बर कॉलोनी है, उसके आगे मुजफ्फराबाद कॉलोनी है। कितने लोग हैं आप इस वक्त पीओके के? देखिए, 3600 क्वार्टर्स हैं इस एरिया के अंदर, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। उस समय मैं 1958-59 की बात कर रहा हूँ। आज आप संख्या बल पर जाएं तो वोटर जो है 55 से 60,000 तक वोटर है। एक बहुत बड़ा प्रभाव है उसका, और निश्चित तौर पर जब उनको लगेगा कि हमारा समुदाय ही इसकी नुमाइंदगी करे, ये तो हर एक में होता है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, हमें किसी से दुख नहीं है, लेकिन अगर हमें मौका लग रहा है कि हम अपने नुमाइंदे को लाएं, तो हम तो उसी को लाएंगे जो हमारा होगा। क्या लगता है, क्या इस बार नज़र में रहेगा जिस चीज़ को सोचकर आप वोट करने वाले हैं? क्योंकि कुछ समय पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो चेहरा देखा जा रहा था, इस बार क्या देखेंगे? इस वक्त हम अपनी बरादरी को देखेंगे। अगर हमने अपनी बरादरी का नुमाइंदा खड़ा किया है तो उसको इलेक्टेड भी करेंगे, और यही हमारी इच्छा है कि वो इलेक्टेड होके जाए। मसले क्या हैं आप लोगों के? मसले वो जो पुराने हैं, बार बार दोहरा रहे हैं हम। हमारा जो पिछला इलाका है वो खाली कराया जाए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे अपने राजनाथ जी बोलते हैं कि वो आप पीओके खाली कराएंगे, वो खाली कराएं, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ बताइए राजीव जी, आखिर का क्या परिस्थितियां रहीं जब आप लोगों को प्लान करना पड़ा? तो क्या लगता है उस वक्त अगर कुछ गंभीरता से किया गया होता तो वो जो दशा है वो बदली होती? आज वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो शायद वापस लौट जाता, आपके घर, आपके वो परिवार जो बिछड़ गए वो आपके साथ होते। देखें, इसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो लोग मर चुके हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए, छोड़ना क्यों है? क्योंकि हमने भोगा है। और मैं आपको एक ईमानदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ, ये आप देखें, एक गांधी मूवी आई थी, उसमें भी ये कहा था कि जिन्ना और ये जो जब पंडित नेहरू का युद्ध हुआ आपस में कुर्सी को लेकर, तो ये कहा गया कि पंडित जी आप अगर मान जाएं जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो देश का बंटवारा रुक जाएगा। तो पंडित जी ने ये जवाब दिया, मुझे एतराज़ नहीं है बापू, लेकिन मुझे लगता है, लोगों को भी लगता है कि आप मुसलमानों की ओर झुक रहे हैं। यानी वो चाहते थे कि अगर मैं उसको दे दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा। देश को बांटा गया, फिर एक कुर्सी और लगाई गई, क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी उनके मित्र थे पंडित नेहरू के। उन्होंने कहा आप दोनों तो बांट लिए, अब मेरे लिए क्या रखोगे? तो इसलिए पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो इलाका था उसको जाने दिया गया। किन लोगों को? जो पहाड़ी स्पीकिंग मुस्लिम थे। मैं तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी फ़ौज इतनी सक्षम थी, श्रीनगर तक कबायली आ चुके थे, एयरपोर्ट तक हम उसको खाली कराए।
हम उड़ी खाली कराए, हम करनाल खाली कराए, हम मुजफ्फराबाद के मुहाने पर क्यों रुक गए जाकर, हम मीरपुर के मुहाने पर क्यों रुक गए, हमने कोटली खाली क्यों नहीं कराया, हम क्यों चले गए यूनाइटेड नेशन में, हमने क्यों माना सीज़ फायर को। जब हमारा फ़ौज इतनी सक्षम थी, आप यकीन करें अगर हम फ़ौज को निर्देश देते ना, वो लाहौर को भी मिला लेते दोबारा हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हमने ये बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि हम चाहते थे कि 3 लोग हैं राजगद्दी के दावेदार, तो झगड़ते क्यों हो भाई साहब, 3 देश बना देते हैं। आप इधर राज करो, वो उधर राज करेगा। आपको भी पता है, इतिहास सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का डेजिग्नेशन बनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको मुख्यमंत्री नहीं कहा गया। लेकिन ये अलग बात है कि जेल से आने के बाद शेख अब्दुल्ला साहब को जब मुख्यमंत्री का ऑफर हुआ तो वो उसके लिए भी मान गए। पहले प्रधानमंत्री, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने भी इतिहास को पलटा और लालच था। ये लालच है सारी चीज़ों का। देश में भी लालच की वजह से बंटवारा हुआ। जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पर तबाही और बर्बादी का इतिहास लिखा गया, हमारे खून की होली खेली गई, ये सारे का सारा क्या था। और आप यकीन जानें 80% मेरी जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करती है। वो खड़े नहीं हो पाए, आज भी ढंग से खड़े नहीं हो पाए। जिनका सर्वस्व लुट गया, जिनका कुछ नहीं बचा, वो कैसे खड़े होते। बड़ा मुश्किल काम था। चलें, इस बार चुनावों में लगता है मुद्दा क्या रहेगा? देखें, हमारे लिए तो मुद्दा यही रहेगा। चुनाव आते जाते रहेंगे। आप तो बड़े पुराने इस बात के गवाह हैं कि हमने कभी इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने दिया, और जब तक जान प्राण है हम इस मुद्दे को उठाए रखेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। लगता है आज भी पीओके के जो रिफ्यूजी हैं वो इस चीज़ को इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं शायद अपनी जान गंवा गए होंगे, मगर इंतज़ार इस चीज़ का है कि एक बार वापस जाया जाए। देखिए, अब तो हद हो चुकी है। 3 क्या कैसा, अब चौथी पीढ़ी आ रही है, तो ये आश्वासन बार बार ही दिया जा रहा है कि हम आपको वहाँ वापस पहुँचाएंगे। देखते हैं। राजनाथ सिंह जी तो कह गए कि पीओके भी जल्द आ जाएगा यहाँ। देखिए, बात यह है, LOC पार खड़ी है, अभी तक तो प्रधानमंत्री साहब वहाँ तक नहीं पहुँच सके, तो हम कब पहुँचाएंगे, ये मेरा सवाल तो ये है। इनका सवाल ये है, कुछ और लोगों से बात करूंगा। क्या लगता है कब तक जो है ये फैसला हो जाएगा कि आप लोग कब जाएंगे? कोई ऐसी सरकार चाहिए या नुमाइंदा देखेंगे कि जो स्थानीय नुमाइंदा? देखिए, हमारी जो इस समय सेंटर में हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी साहब जिसकी कर रहे हैं सदारत, मेरे को लगता है कि हमें उम्मीद दिखना शुरू हो गई है, और लगता है कि बड़ी जल्दी ही हम अपने ये चीज़ मंजिल को मुकाम पा पाएंगे। एक सीट मिली है, इस बार नॉमिनेट होने वाली है, तो क्या लगता है किस तरह का शख्स जो है विधानसभा में पहुंचना चाहिए? सर, ऐसा है कि नॉमिनेटेड सीट एक ही आई है POJK के लिए, लेकिन मैं आपकी मतलब जानकारी के लिए शेयर करूंगा। हमारी इस समय POJK के 5 कैंडिडेट जम्मू से खड़े हुए हैं, जो जम्मू प्राविंस से हैं। 4 जम्मू सिटी के हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी ने 5वां कैंडिडेट जो है वो नौशहरा से भी दी है। अगर ये 5 कैंडिडेट हमारे जीत के आ जाते हैं और सदन में चले जाते हैं, असेंबली में चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेंथ 5 नहीं 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी। नुमाइंदे जो हैं वो काफ़ी रहते हैं। क्या लगता है, जी सर, मैं इन सब की बातें सुनकर और केंद्रीय गृह मंत्री जी के विजन को देखते हुए एक छोटा सा शेर बोलना चाहता हूँ। सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, वक्त किसी के लिए झुकता नहीं है। सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, वक्त किसी के लिए झुकता नहीं है। सुन लो पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरानों, अब POJK वापस लाना रुकता नहीं है। क्या बात है। कितना ज़रूरी हो जाता है, ये बात तो निकल रही है दिल से, मगर इन चुनावों में क्या ये मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो हमारा इलाका हमें चाहिए कि विधानसभा के चुनाव है। बिल्कुल विधानसभा के चुनाव है, और इस चुनाव में जो हमारे नुमाइंदे खड़े किए हैं वो हमारी भी जाके बात रखेंगे असेंबली में, और हमारा इसीलिए उनको हम वोट देंगे कि वो हमारी आगे बात करें, आगे बात करें। क्या लग रहा है चुनाव में किस तरह का नुमाइंदा आप चाहते हैं? क्या काम है जो आपके इलाके के होने चाहिए थे? और POK के लोग जो हैं वो कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जहां आप लोग रहते हैं? मुझे तो इस मोदी सरकार पे बहुत भरोसा है। जब भी उनको कभी मौका मिलेगा वो ज़रूर खाली करवा के हमें वो वहाँ भेजेंगे। इसके साथ ही मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया है।
an eye-shaped daffodil which cries for 1,000 years over its lack of vision with great difficulty that an true vision is born in this garden. ये मोदी जी हैं जो मुमकिन है तो सब कुछ मुमकिन है, बहुत कुछ बोला गया हो सकता है। मुमकिन हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को, आपके लिए मुद्दा जो है वो कोई स्थानीय मुद्दा रहेगा इस बार चुनावों में? मुद्दा तो यही है, देखिए जो हमारा इलाका है वो जानबूझकर उसको उस वक़्त खाली नहीं करवाया गया, क्योंकि उस वक़्त ये यहाँ जो बैठे थे जिनको ये बनाना चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि वो इलाका इधर आए, क्योंकि इनसे भी बड़े पढ़े लिखे आदमी वहाँ बैठे हुए थे जो कि ये चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि हम उस इलाका को इधर मिलाएं, इसलिए हमारा वो इलाका उधर रह गया। अब हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि वो उस इलाका को खाली कराएं, हमारे सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। Clear words from the people over here and they say it's clearly, will speak to once again to the people. लगता है इस बार सदन जब बनेगा 10 सालों के बाद, तो 10 सालों के बाद ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं होगा कि कश्मीरी पंडित कब वापस पहुंचेंगे, मुद्दा ये भी होगा कि आप लोगों की वापसी कब होगी। निश्चित तौर पर होगा। हम तो किसी चुनाव को, किसी मौके को जाने नहीं देते। हम तो कहते हैं हर मौक़ों पर अपनी बात करेंगे तब तक जब तक इस मसले का स्थायी हल नहीं हो जाता। They want a permanent solution to this. Something would you like to add? बिल्कुल सर, आपकी एक बात का जवाब दूंगा मैं। वो कहते हैं कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो हमारे नुमाइंदे जाएंगे ये ऐसा पत्थर उछालेंगे जिसकी आवाज़ केंद्र तक जाएगी। You want these people to raise your issue in the assembly and the parliament. And that will go to the parliament and then parliament will take action again and definitely something will be done this time. Thank you so much for speaking with us, and this is the special telecast from the Kotli colony of Pakistan occupied Kashmir refugees, which was, built over here in 1958, and for last more than 5 decades they are sitting over here and clearly saying that this is enough, and when after 10 years this assembly is going to be constituted, they want their people to raise this issue of the Pakistan occupied Kashmir refugees, that how the government is planning to take them back to the native places. With Bandi Diga, Ajay Jandial, NewsX, Jammu. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.